This क्लास बिटिया नहीं वो आइज ठीक है बिल्कुल। यस सर गुड। और भी यश कैसा है? पर्ल, एमी, गुड आफ्टरनून। हेलो कार्तिक, कैसे हो? नंदनी, नताशा बढ़िया है। गुड आफ्टरनून सर। हेलो श्रिया, गुड आफ्टरनून श्रिया। एमी कैसे हो बेटा? ठीक सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया डोली। आज तेरी प्यारी सी आवाज सुनने को मिल रही है। आज तो दिन बहुत अच्छा है ना? है? क्या हुआ था आज? चल बात करता रहकर फायदा होगा। तो पिछली क्लास में चावला हमने किया था ऑक्सीडेशन विद कॉपर एट 573 केल्विन, 1 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, 2 डिग्री show dehydrogenation, 3 degree show dehydration to form alkene, aldehyde, ketone, alkene. Oxidizing agent were introduced, strong, moderate, mild. We discussed PCC, PDC, although अब दी गई थी, अभी इनका हमने यूज ही नहीं किया है, ये सिर्फ अभी आपको लिस्ट दी गई थी. The time will come, these all 5 mild oxidizing agent will convert aldehyde to acid, or maybe these are going to be used as a test for aldehyde. But just अभी मैंने सिर्फ एक background बनाया है, आपको list दी थी. Remember, formic acid, whenever it is going to be formed, it will be going to carbon dioxide and water. You can't prevent the reaction at the formic acid stage. But 1 degree alcohol can be converted to aldehyde by choice of oxidizing agent, distillation under continuous process, oxidation under continuous distillation, CrO3 in anhydrous media, Collins reagent. This इसको नहीं भूलने का है. आपके 90% रिएक्शन पीसीसी पे चलेंगे, आपका जो सीबीएससी चलेगी वो पीसीसी चलेगा. जब हम आपकी कन्वर्जन्स करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड में, आई विश दैट आप मुझे पीसीसी और पीडीसी बताएं. द लॉजिक इज दे आर इन योर सीबीएससी सिलेबस. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पीसीसी और पीडीसी इज all of these are going to oxidize with the 1 डिग्री को लेके जाएगा aldehyde पे, and that will be also able to oxidize 2 degree to ketones. And the important thing is it will not impact carbon-carbon double bond. It will act only on alcohol moiety. Moiety is a English word, group. मोइटी को सिर्फ ये चेंज करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को करेगा. These are not very important, but yes, you should know that. Okay, PCC, PDC तो भूलने की बात ही नहीं बनती है. Secondary alcohols can be oxidized to all above, as well as KMnO4 और potassium dichromate भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. Remember, 3 degree alcohol do not get oxidized at all. 3 degree. कीटोन्स की ऑक्सीडेशन अगर आप करते हैं, the carbon-carbon bond is going to break. Symmetrical है, no issue, this can break or this can break. Symmetrical है, no issue, you can break any one. The only point to be taken care is, अगर ये तोड़ा है तो 2 कार्बन वाला एसिड और इधर से मिलेगा 3 कार्बन वाला एसिड, 1 कार्बन will be always going to formic acid. You will not be able to prevent the reaction at formic acid. It will automatically go to the dioxide and water. So we discussed something known as Popov's rule, that during oxidation of unsymmetrical ketone, the keto group try to feel that it is great. It will try to keep उसका साथ लेगा जो छोटा ग्रुप होगा. For example, CO group will tend to stay with the methyl group. That is till what we discussed in the last class. So now we should move ahead with more reactions, right? So one reaction which I'm bringing before I practice the oxidation reactions are Victor-Meyer test.
like Lucas test. This is also going to be an important test, very important brother. It is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. See what is going to happen. The 1 degree, 2 degree, 3 degree. The 1 degree alcohol, अभी एक पे focus करते हैं, will be made to react with P and I2. What is going to happen, son? Here you will be getting iodine replacing OH. Then you put AgNO2. The AgNO2 will be doing again nucleophilic substitution reaction. In place of this, you are going to get NO2. The NO2 is going to be added here. Now put nitrous acid. The nitrous acid will be added in such a way that try to remove the maximum alpha hydrogen. अच्छा यहाँ पे ध्यान दे बेटे, जब नाइट्रस एसिड डालेगा तो नाइट्रस एसिड यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ये निकालेगा. वाटर विल बी मूविंग आउट. नाउ R यहाँ पे NO2 और बाइंडिंग कैसे होगी नाइट्रोजन से, और आपने 2 हाइड्रोजन निकाले हैं तो यहाँ पे क्या देगा, डबल बॉन्ड और OH. इसको बोला जाता है नाइट्रोलिक एसिड. This is acid. So you put NaOH on that. This is going to become the blood red color. So 1 degree alcohols पहले किसके साथ रिएक्ट करवाया, PI2 के साथ, फिर किसके साथ, AgNO2 के साथ, फिर डाला नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड के बाद हमें मिला नाइट्रोलिक एसिड और उसके बाद कौन सा रंग आया, the blood red color is going to be there. Let's do the 2 degree alcohol की कहानी. ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, स्टेप्स वही होंगे बेटे. तो आज माइक चल रहा है बेटा? Yes, sir. तो आज 2 degree alcohol पहले डाला, रेपिटेशन PI2, तो ये आपको मिल गया आयोडो. वैसे तो चाहता बेटा यहाँ पे Cl भी डाल सकता था, बट आयोडीन बॉन्ड वीक होता है. हमने कौन सा यहाँ पे रुकना है, हमने तो इसको आगे कन्वर्ट करना है. तो Yes, sir. AgNO2. What is going to happen? R2CHN2. अब की बार क्या डालेगा, the nitrous acid. क्या याद कराने का कोशिश की, यहां से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो निकालेगा और क्या बाहर आएगा, वाटर. यहां भी क्या आया, वाटर. नाउ यू विल गेट N सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज गोइंग टू बी NO2. यहाँ पे क्या लगा है, N डबल बॉन्ड. इसको बोलते हैं नकली स्यूडो नाइट्रो. अगर हम इसके ऊपर NaOH डालें, we are going to get the blue color is going to be formed. 1 2 3 4 1 2 3 और 4 NaOH के डालने के बाद ब्लू कलर मिलेगा. And the tertiary alcohol will with iodo to form what, R3CI. You are going to AgNO2. तो क्या मिलेगा, NO2. अब देख, ये इसीलिए याद करा रहा था, there is no alpha hydrogen, so this is not going to react further. Okay, sir. It is a very important test. एक पिछली बार गया था, कौन सा टेस्ट किया हमने अभी तक, First test. Remember, मैंने टेस्ट में पूछा और तुम्हें कहा था 1 degree alcohols do not respond to Lucas test at ordinary condition. So एक क्वेश्चन आया था, एंड अभी कौन सा कर रहा है, द विक्टर मायर टेस्ट. दोनों बिटिया इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए. कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, वरना बिंदल सर आगे चलते हैं. इज इट क्लियर बिंदल? यस. गुड. चलिए यहाँ थोड़ी, हाँ बोल बोल. तो यहाँ पर O से क्यों नहीं बॉन्ड बना, N से क्यों बना? मेरी केमिस्ट्री होती है ऐसी है बहना. तो अगर A B के साथ ऐसे रिएक्ट करता है तो A C के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करता है. वहां से एलिमिनेशन के लिए कोई था ही नहीं. आप 3 डिग्री की बात कर रहे हैं ना,
नहीं नहीं सर, मैं वैसी रिएक्शन जो 1 और 2 डिग्री में एच नाइट्रस एसिड है हमारा, वहां पर ओ से क्यों नहीं जुड़ते हैं? मैं समझा नहीं, इधर नेक्स्ट जो हमने रिएजेंट डाले, ये वाला, और नहीं, इसको रिएक्शन ए बोल दे, इसको बी बोल दे, या इसको ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, तो डी बोल दे। किसकी बात कर रहा है? जब 1 डिग्री में ए के अंदर, जब यस सर यहाँ पर एन हुआ, शी के साथ एन का बॉन्ड बन रहा है, तो ओ का क्यों नहीं बना? That is water is going to be eliminated बेटिया। Every reaction is a unique, कहीं पे कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, कहीं पे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यहाँ से डिहाइड्रेशन होती थी। You may be asking about its mechanism. So this happens like this। इससे ज्यादा आगे नहीं जाने का, अभी नहीं जाने का, है ना। कल को अगर प्योर केमिस्ट्री में गया तो जरूर जाने का गुड़िया, अब इससे आगे प्लीज नहीं जाने का। ब्रेक, दैट्स फुल स्टॉप। सो नॉट अ गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर ध्यान कर, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वहीं पे आज ब्रेक लगानी है, ठीक। When I tell you तो प्लीज हैव अ ब्रेक टॉली वहीं पे। ओके So सर। this is not very important, so I'm not writing important, rather to be honest with you, मैंने अभी तक इसके ऊपर पिछले 30 साल में कोई क्वेश्चन भी नहीं देखा है। Why I'm doing it? Because जब आप बुक खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। So this is a strange type of reaction, open air oxidation। इसमें क्या होता है कि we take a tertiary alcohol, बस उसमें आगे मत जा बेटिया। ये tertiary alcohol, हम इसके ऊपर कोई कीटोन डाल देते हैं। दिस इज C डबल बॉन्ड O, लेट इट बी एसीटोन डालिए। तो इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड डालते हैं, और देख दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, दिस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, राइट। मैंने अभी गलती से अभी ठीक कर देता हूं, मैंने दोनों को ना, आपको पहचान नहीं आएगा तो मैं इसको चेंज कर देता हूं, क्योंकि दोनों तरफ मैंने मिथाइल मिथाइल लगा दिया था ना, तो यहाँ पे से C2H5 लगा देता हूँ। नाउ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज। देख अब क्या होगा, C2H5 इसका भी मैकेनिज्म है, तो प्लीज इससे आगे मत जाना। तो दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, और दूसरी तरफ से हमारे पास जो ये वाला था, that is going to be the reduced, this is going to become CHOH, the CH3, right? So it has, one has oxidized, another has the reduction has happened, not a very important reaction, that's it। इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए था। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, अपना टोटल नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे शर्मा जी, 5-7 मैंने अपनी तरफ से इकट्ठे कर दिए हैं। नाउ योर जॉब दैट यू आर गोइंग टू प्रिजर्व इट, आप इसको ढंग से लिख के रखेंगे। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट brings out mild oxidation of primary alcohol। ये इंफॉर्मेशन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, सो मैंने इकट्ठे करने का काम किया, प्लीज आप इसको संभाल के रखना। It also oxidized the aromatic methyl group into aldehyde, aromatic methyl group into aldehyde। Let us see what I want to tell you। Are you able to see a primary alcohol here? Ceric ammonium nitrite will be oxidizing, क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाएगा गुड़िया, it is going to take it to the aldehyde stage। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल को, जैसे आपने PCC PDC कहा था ना, so this is going to be CH2OH, you understand, CH2OH। now this is going to be oxidized where, the OCH3 को इसने हाथ नहीं लगाया, और इसने इसको कहां ले गया है, ये जैसे PCC चल रहा है वैसे वैसे आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी देख रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक, एक और चीज पढ़ो, व्हाट डिड ही से, इट आल्सो ऑक्सीडाइजेस एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप इनटू व्हाट, CHO। See Sharma, it is a typical reagent
दिस इज CH2OH और यहां लगा दिया CH, तो शर्मा जी वेयर दिस विल गो? एल्डिहाइड। यस सर, CHO। उसने क्या कहा, एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप को कहां ले जाएगा? CHO। या सो दैट इज गोइंग टू बी बढ़िया, किसके रिएक्शन है? द, हाँ जी स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट। समझ पा रहे हैं, मिथाइल, यस। दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ये ना लगती है बेटा किसी तरीके से, है ना। और आप लोगों ने शायद सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट आप लोगों के जो नीट वाले हैं उनके पेपर भी हम लोगों ने अगले साल करवाने हैं इसके ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सुन रहे हो, पढ़ा आपने न्यूज़ नो, में? ये तो नहीं पढ़ा। तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट के नीट वालों के पेपर क्यों नहीं हो सकते हैं ऑनलाइन, सो आपके पेपर भी ऑनलाइन उम्मीद करिए, क्योंकि उससे फिजिकल कांटेक्ट थोड़ा कम हो जाता है ना। अब जैसे नीट के पेपर होगा तो उसमें 12-15 लाख लोग, 12-15 तो नहीं 10 लाख के आसपास इनको उम्मीद है, 10 लाख लोग एक ही दिन पहुंचेंगे पेपर देने। और जबकि जो जेई के हो रहे हैं, द मोर स्टूडेंट्स आर देयर बट इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर काफी टाइम के ऊपर, हफ्ते के ऊपर इन्होंने स्टैगर्ड कर दी है, और उनकी जो यस। इवेल्युएशन हो जाती है वो एकदम हो जाती है। चल पुत्र आगे चलते हैं, शर्मा इसके लिस्ट बनानी है। MnO2, MnO2 is a mild oxidizing agent. Mild KMnO4 डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग में आता है, कहता है it selectively oxidizes allylic, benzylic, propyl alcohol to aldehyde और the ketones. इस कार्बन को क्या बोलता था? एलाइलिक। यस सर। इसको कहां ले जाएगा? एल्डिहाइड। अगर 1 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ तो कहां ले जाएगा? कीटोन। कीटोन। ये कार्बन कौन सी है? आज बीच में बोलता रहे शर्मा जी, तुम भी बोलते रहो। कार्गाइल। प्रॉपर गाइलिक, ट्रिपल बॉन्ड से। और ये कार्बन बेदी कौन सी है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। तो MnO2, सी बेदी, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, यू शुड मेक अ लिस्ट। इधर रख लेना MnO2, उसके आगे लिखना उसकी खासियत, उसके आगे लिखना उसके एग्जांपल। एंड हार्डली बेटे ये हमने जरूर उसको 4-5 पेजेस में किया है, यू कैन जस्ट राइट इट ऑन 1 पेज जब आप समरी बनाते हैं। सो देख शर्मा, दिस इज गोइंग टू बी गुड़िया CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, नाम क्या है? एलाइल अल्कोहल। और सिलेक्टिवली का मतलब समझ पाते हो? इट इज गोइंग टू लीव द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज इंटैक्ट। समझा? यस सर। यस इसका सर। नाम बताएगा कोई? एल्डिहाइड तो समझता ना? यस सर, एल्डिहाइड। तुम्हें आईयूपैक तो आता ही आता है, prop 2 इन अल, बट एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिल एल्डिहाइड यार, याद रहेगा। यस अब सर। ये देखिए, अगर मैं आपके पास 2 डिग्री लाऊं, everybody can speak out, this is going to be OH। ये क्या था? 1 डिग्री, किस में गया शर्मा? एल्डिहाइड। एल्डी। ये क्या है बहन? 2 डिग्री। ये किस में जाएगा? कीटोन। और इसका नाम बता दे। एसेटोफिनोन। वेरी गुड। और 1 फिनाइल इथेन ऑन, हालांकि वो कम बोला जाता है, जो आपने बोला वो ज्यादा लिखा जाता है। तो बेटे सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, PCC, PDC, राइट, ये इंपॉर्टेंट। MnO2 की, इनके बारे में यहाँ पे जो भी आपने इसकी खास बात लिखनी है जो मैंने आपको बताया है, ठीक। और यहाँ पे गुड़िया इसके एग्जाम्पल बनाना। अर्श हो जाएगा? ठीक, because when you Yes. will be, that is the only way that is going to help you बेटे। एंड सुनो, स्कूल बोर्ड्स में तो वो इसका 10% भी बात नहीं करेगा, सच में इसकी 10% भी बात नहीं करेगा। तो हालांकि बेटिया ये जो रिएक्शन आ रहा है ना,
ये मैं भूल गया था आपको रिडक्शन में करने के लिए, सो मैंने इसको यहाँ पे कवर किया है. दिस बिलोंग्स टू व्हाट? रिडक्शन. ठीक, बट सन इट इज इम्पोर्टेंट इवन फ्रॉम योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी कन्वर्जन भी करवाएगी. नोटिस डाइबोरेन selectively reduce carboxylic acid. क्या लिखा है? It does not reduce aldehyde, ketone, NO2. इसकी सही जगह कहाँ पे होगी बच्चों? MOP of alcohols. It selectively reduce what? The carboxylic acid. Selectively. दोबारा करते हैं, don't worry. तो श्रिया, आज तो माइक चल रहा है गुड़िया. Yes, श्रिया, sir. तो श्रिया यहाँ पे रखते हैं बहन ये, और यहाँ पे रखते हैं ये. रेपिटेशन इज अ की, राइट? देख एक बार और लिखते हैं. डाइबोरेन सिलेक्टिव का मतलब होता है कि एक ही चीज पे जाएगा. सिलेक्टिवली रिड्यूस किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को. व्हाट? CH2OH. तो Yes, डियर, sir. दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. Yes, sir. सिलेक्टिव. आप सिर्फ अपनी ममा से ही बात करेंगे, सो दैट इज बीइंग सिलेक्टिव. आपकी उनके साथ फ्रीक्वेंसी है, तो ऐसा होने वाला है. CO उड़ गया, ओ सॉरी बच गया, और हाँ बेटिया द ये रिड्यूस हो गया. डू यू अंडरस्टैंड सिलेक्टिव? Yes, sir. जबकि देख ये नोटिस करना, अगर इसके ऊपर LH डाल देता, अर्शी याद कर डली, LH स्वीया क्या करता था? ये कीटो को भी रिड्यूस कर देगा, और ये किसको रिड्यूस कर देगा? इसको भी रिड्यूस कर देगा. डिड यू नोटिस? बोथ द कीटो एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड गॉन का मतलब रिड्यूस्ड. Yes, अब sir. शर्मा मैं भूल गया, बात करता रहा स्वीया बेशक, है ना? स्वीया सारे के सारे जो भी सुन पा रहे हैं, जो भी मेरी मदद कर सकते हैं. सो अगर मैं NaBH4 डालता तो क्या होता बेटा? प्लीज गलती की कोई परवाह नहीं है, आप कोशिश करें. दैट इज व्हाट वी वांट. हाँ स्वीया, गलती करना, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, चिंता क्यों करता है? तो NaBH4COOH को नहीं कर पाएगा रिड्यूस. वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल बढ़िया बोला है. कीटो को कर देगा ना? यस सर, कर देगा. बिल्कुल बढ़िया है. इट डिड या डज, आपने जो लिखना था, रिड्यूस. एक बार दोबारा बोल दे. COH. कार्बोक्सिलिक. तो सोडियम बोरोहाइड्रेट को भी आप सिलेक्टिव कह सकते हैं. इट डिड नॉट रिड्यूस दिस. LH को आप सिलेक्टिव नहीं कह सकते हैं, है ना? LH दोनों तरफ चल रहा है. सोडियम बोरोहाइड्रेट कीटोन्स को रिड्यूस करता था, याद करो, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करता था. इसी चैप्टर में हमने आपको लिस्ट दी होगी, समझ आएगा बेटे? तो दिस इज गोइंग टू मेक यू एंटर इनटू द प्रोफेशनल कॉलेज, whereas बाकी के जो रिएक्शन होंगे वो आपको सिंपल BSc BA की तरफ ले जाएंगे. योर चॉइस, यू लिसन टू मी. अच्छा सुनो बेटे, स्कूल के पेपर्स को लेके अभी ज्यादा टेंशन नहीं करो. हमारा फोकस रहेगा, रहता है, और हम फोकस मारते हैं आपके लॉन्ग टर्म 20 इयर्स बाहर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं. स्कूल वाले फोकस करते हैं कि उनको मार्च में आपको कहाँ चाहिए, उसके बाद आपकी बाय बाय हो जाएगी. आई गारंटी, हमने एनसीईआरटी के आप पीछे मुड़ के देखिए, हमने कुछ नहीं छोड़ा है, राइट? आपकी जो स्कूल होगा वो इस साल से, पिछले साल उन्होंने जो भी शरारतें की थी, वो पूरा एनसीईआरटी पे हो जाएगा. मेरी बात सुन रहे हो? आज के दिन में लिख के रख लेना है पुड़िया के अंदर. यू विल बी गेटिंग, जिन्होंने मेरी बात सुनी, एनसीईआरटी बात की, मेरे से पूछा, मेरी बात पे चले हैं, 65 to 70 out of 70 आई गारंटी. बट दैट विल हैपन इन आपके जो प्री बोर्ड्स आएंगे और बोर्ड्स आएंगे. सितंबर टेस्ट में आई कैन नॉट डू इट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेजर पोर्शन इन योर कंपटीशन, सो दैट इज माय फोकस. आई डू नॉट वांट कि अगले साल ये जो मेरी लड़कियां हैं वो MCM DAV या GCG में जाके BSc कर रही हो, और जो लड़के हैं वो GCG या DAV में जाके BSc कर रहे हो. दैट इज नेवर माय एजेंडा.
सो प्लीज फोकस करो कंपटीशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आप ढूंढ लीजिएगा, आपको अपनी एनसीईआरटी में दूर दूर नहीं मिलेगा। आप अपनी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन उठा के दिखेगा, आपको मिल जाएगा। सो अभी स्कूल की टेंशन मत करो, एंड मोर एवर I should not say it at this platform because this is being recorded. तो बाद में आपको वैसे बात कर सकता हूँ कि आपने जब स्कूल लिया था तो आपने सिलेक्टेड लिया था कि आप वहां पे कितनी छुट्टी ले सकते हैं। जब आपने ये सोच के लिया था तो अब स्कूल की ऐसी कौन सी टेंशन आ गई कि हम स्कूल को उसके पीछे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और हम ज्यादा कर रहे हैं, हम कम नहीं कर रहे हैं। आपके स्कूल ने जीओसी ना कभी क्लास 11th की करवानी है ना सोचनी है। उन्होंने जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थी ना उन्होंने +1 की कोई बात करनी है ना करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना उन्होंने +1 के रिएक्शन की बात की थी ना उन्होंने करनी। सो डोंट वरी, दैट इज माय एजेंडा टू अश्योर यू। चल बेटा आगे चलते हैं। एमी दीदी बात करेगा। एमी, दिस विल बी इंपॉर्टेंट गुड़िया। देख एमी, बिल्कुल नहीं रटने का, ठीक? जैसे पीछे अर्श ने पूछा था ना HNO2 का, मैंने कहा ऐसे हुआ था, ये तो अर्श समझने वाला है, ठीक है अर्श? 1 डिग्री अल्कोहल, प्लीज रटा मत मारो, अभी दिखाता हूं, विल बी गोइंग टू एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल्स विल बी गोइंग टू HiO4 के साथ एल्डिहाइड्स में जाएंगे। डोंट वरी, अभी बिल्कुल टेंशन मत करो। 3 डिग्री Me चले जाएगा कीटोन्स में, अभी एग्जांपल के साथ करेंगे गुड़िया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर आप इसके ऊपर डालते हैं HiO4, HiO4 को बोलते हैं अश पर आयोडिक एसिड। इट्स गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको बड़ा Okay, प्यार sir. या दुश्मनी है जिन कार्बन के ऊपर OH लगा हो विसिनिटी में, ये उस बॉन्ड का हैप्पी बर्थडे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको तोड़ देगा, गॉट इट? इसको तोड़ देगा और बना देगा फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, राइट? बी गोइंग टू टेक इट टू फॉर्मेल्डिहाइड। बिल्कुल याद मत कर गुड़िया, मैं रेपिटेशन से याद करा दूंगा, है ना? अब ये Yes, ग्लीसिन sir. नाम था, Yes, sir. ग्लीसिन। देख बहन, इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो ऊपर वाला गॉन टू एल्डिहाइड, नीचे वाला गॉन टू एल्डिहाइड, सेंटर वाले पे मिला फॉर्मिक एसिड। अभी दिखाता हूं कि ये कैसे हुआ, राइट? ये पेज पढ़ो, जस्ट रीड इट। In case of polyhydric alcohol, 1 mole of HiO4 is consumed between every 2 adjacent hydroxyl group. So this is going to consume son 1 HiO4. This is going to consume what? 1 HiO4. One. तो कितने मोल लगे आपके? 2 मोल। Suppose it is going to be, मैं इसको ऐसा ले आता हूं। अब आप बताइए कितने मोल HiO4 के लगेंगे? So 3. 3 मोल्स HiO4 लगेंगे। कोई बेदी बात कर सकता है, कहीं जंगल में नहीं बैठा है कि तेरा माइक नहीं चलता है, तो अगर गड़बड़ हो गया तो कोई बात नहीं है। एन अल्कोहलिक ग्रुप, स्टार कर ध्यान देना, एन अल्कोहलिक ग्रुप on both side by HiO4 is converted always into carboxylic acid। देख बहना, ये जहां पे बेदी मैं स्टार लगा रहा हूं, ये दोनों तरफ से HiO4 से अटैक हो रहा है ना, तो गुड़िया यहाँ पे कितना दिख रहा है? एक। ये कहाँ गया? फॉर्मिक एसिड। और इसने कहा जाना है? एल्डिहाइड पे। इसने कहा जाना है? एल्डिहाइड पे। अब ये कहाँ जाएगा? Formaldehyde. वेरी गुड। सो बहना, अगर मैं ऐसा लिख दूं चलेगा? Yes, sir. गुड सन। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, इसको इधर से भी HiO4 से अटैक मिलेगा, इसको इधर से भी अटैक मिलेगा, तो एक कार्बन और एक कार्बन, कितने कार्बन वाले एसिड मिलेंगे आपको? कितने एसिड मिलेंगे? 2 moles मिलेंगे वेरी गुड। किसके? फॉर्मिक एसिड के।
फॉर्मिक एसिड बनाना बहुत मुश्किल है। ये आपकी स्किन से 37 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज हो जाता है। सो दिस विल बी अ गुड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फॉर्मिक एसिड। ठीक है, समझा है? Yes, चले sir. आगे। वेरी गुड, चल आगे चलते हैं, देखते हैं आराम से बैठ। ये कौन सा मॉलिक्यूल दिख रहा है ना तेरे को? ये ग्लूकोज नहीं है, मुझे बता। एक नहीं है पर बहुत बड़ा है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 hex in 2 3 4 5, Okay. right? 2 3 4 5 टेट्राओल Tetraol. बन जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? Yes, ये मेरे sir. को समझ नहीं आया। 3 मोल्स HiO4 ठीक है कि गलत? ठीक है सर। क्योंकि 1 2 3 दिस इज करेक्ट है ना, नो डाउट। 2 डिग्री पहले पेज पे जाओ, क्या लिखा था, किसमें जाएगा? एल्डी। पता है अन्या बेदी, सीखने का ढंग, यू शुड राइट इट ऑन अ पीस ऑफ रफ पेपर, है ना? और मे बी आप जब ऑब्जेक्टिव करते हैं अपने ये नोट सामने रख लो, जब क्वेश्चन मिलता है व्हाई डोंट यू कम बैक बेटे, यू शुड गो टू द सोर्स बिकॉज दैट इज द प्रैक्टिस। सो इससे प्रैक्टिस मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल किस में गया? एल्डिहाइड। ये समझ आ गया? एल्डिहाइड। 2 डिग्री किस में गया? एल्डिहाइड। यू वर टॉट जो कार्बन दोनों तरफ से HiO4 से अटैक होएगी उसको किस में कन्वर्ट करना है? एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यस। दोबारा पढ़। अल्कोहलिक ग्रुप अटैक्ड ऑन बोथ साइड बाय HiO4 is going to be converted into formic acid। सुन, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एम्स दिल्ली की तरफ लेके जा सकता है। अब तेरे को समझ रहेगा, है ना? इंपॉर्टेंस देख लेना, स्कूल की बात ही नहीं करेगा वो। तो इसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो 2 कार्बन वाला एसिड समझ आया बहन तेरे को? यस सर, एसिटिक एसिड। 1 2 वाला। अब ये भी किस में जाने वाला? दोनों तरफ से अटैक होगा, किस में जाएगा? एसिड पे। ये देख कहाँ गया? एक कार्बन वाला एसिड। एक कार्बन। एक कार्बन वाला एसिड। और पहले पेज पे क्या लिखा था? 3 डिग्री अल्कोहल्स किस में जाते हैं? कीटोन। अब इसमें जो लास्ट कार्बन है सबसे नीचे वाला, क्या आपको 3 डिग्री अल्कोहल नजर आ रहा है शेर खान? यस सर। तो ये कहाँ जाएगा गुड़िया? प्रोपेनॉल। किसने? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। एसीटोन बोल दिया कर, मेरे को खुशी रहती है कि तेरे को याद है। बहुत बढ़िया स्विया, चला गया। स्विया कोई टेंशन नहीं, जितनी मर्जी बार गलती करना है गुड़िया, जितनी मर्जी बार। मेरे को तो ये भी बोलेगा 32 पेज पे चलो तो 32 पे जाएंगे, बट जब मैं इस HiO4 की ऑक्सीडेशन से बाहर आऊंगा, हमारा स्विया चावला पक्का होना चाहिए, है ना स्विया? स्विया, Yes, माँ को और टीचर को ना बड़ी खुशी होती है, शान मारने का मजा आता है। ऑफ कोर्स पापा को भी, जब तुम कामयाब हो जाओगे। हमें कामयाबी भी की ज्यादा टेंशन नहीं है, ऑनेस्टी से हमें कामयाबी की ज्यादा टेंशन नहीं है, हमें तुम्हारी सेफ्टी की, तुम्हारी हैप्पीनेस की ज्यादा टेंशन होती है बेटा। सो दैट इज द रीजन कि माँ बोलती रहती है ना हमेशा, पढ़ ले। अच्छा पढ़ रही होगी तो शी विल बी आपको दिस बता रही होंगी, ऐसे पढ़ना चाहिए। सो सन दैट हैपेंस। तो स्विया यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टाइम। एल्डिहाइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट एसिड? एक पेज के ऊपर लिख ले, रफ में स्क्रिबल कर, फायदा Yes, होगा sir. सच। वो पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है? उसने सिंपली ये क्वेश्चन पूछा है आपके, डी ग्लूकोज के HiO4 से कितने फॉर्मिक एसिड बनेंगे और कितना एल्डिहाइड बनेगा, और ABCD विच आर द फॉलोइंग आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ डी ग्लूकोज और डी ग्लूकोज का फॉर्मिक एसिड। ठीक? HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, CHO ऐसा है बेटा कि ये किसी की भी उंगली पकड़ के चल पड़ता है, कहां पे जाता है? फॉर्मिक एसिड। Aldehyde goes to
formic acid. Formic acid. This is going to be attacked on this side and this side. तो वो कहां जाएगा? एक कार्बन वाला एसिड पे. Got it? Yes, sir. ये भी दोनों तरफ से अटैक हो रहा है ना HiO4 से. कितने Yes, कार्बन पे sir. जाएगा? एक कार्बन. ये एक कार्बन वाला किस पे जाएगा? फॉर्मिक एसिड. Yes, sir. और ये भी गया फॉर्मिक एसिड. Formic 1 acid. डिग्री अल्कोहल अभी बेदी ने बताया था किस पे जाता था? एल्डिहाइड. सो डी ग्लूकोज के HiO4 के साथ पहले तो मुझे बताओ कितने मोल लगेंगे? मैं गलती कर सकता हूं. 5. बिल्कुल सही बोला. जितने प्रोडक्ट आए बस उसको एक को छोड़ दे. और क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? 1 2 3 4 5 और हाँ बेटिया द 6 is going to be obtained. Do you understand? Shall we Yes, move ahead? sir. Good. अब लिख कहीं पे सर में. हाँ बोलो. सर वो कीटोन वाला पॉइंट समझा दो जो मतलब पिछली स्लाइड में था. कीटोन वाला एक मिनट बेटे बताएगा इस वाले में. यस सर. जो 2 डिग्री है ना राजा, HiO4 के साथ जाता है कीटोन के ऊपर, क्योंकि इधर से तो ये कटेगा नहीं. सर 2 डिग्री वाला जाएगा कि 3 डिग्री वाला? 1 2 3 यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया. 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो मैंने गड़बड़ी कर दी. मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल. ये यहाँ पे गलत लिखा बेटा. ठीक है. ओके सर. The 2 degree goes to ketone. The 2 degree goes to ketone. 3 डिग्री बट इस वक्त इसकी डिग्री क्या है? मैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ? 1 2 सर 3 डिग्री तो है. my bad. 3 degree goes to ketone, 2 degree goes to aldehyde. Sorry, my bad. बिंदल वेरी बैड. पता नहीं मैं किस कारण से इसकी डिग्री में गड़बड़ कर गया हूँ. 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री. 3 डिग्री goes to ketone, 2 degree goes to aldehyde. 2 degree goes to aldehyde. This is a 2 degree. 2 degree कहाँ गया है? aldehyde पे. सब कुछ ठीक लिखा, पता नहीं कैसे. सॉरी बिंदल, अब समझ गया? ठीक है. So this Yes, is going sir. to 3 degree goes to ketone. बिंदल क्यों ना अगर हो गया तो इसको रिपीटिशन में डाल देते हैं. 1 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा? एल्डिहाइड. 2 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा? एल्डिहाइड. और 3 डिग्री अल्कोहल किस में जाएगा? कीटोन. कीटोन्स. गड़बड़ी हो गई थी तो रिपीट कर लेते हैं. दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल. इट इज गोइंग टू हाँ जी एल्डिहाइड. हालांकि मैंने अपनी एल्डिहाइड. कर रखी है. ये क्या था? 3 डिग्री बट दोनों साइड पे अटैक जब होगा वो किस में जाएगा? द कार्बोक्सिलिक एसिड में. Alcoholic group attached on both sides, right, by HiO4 is converted to carboxylic acid. The 3 degree alcohol attacked on both sides will be going to what? Acids. So this is going to go to acid. This is again 1 degree 2 degree, but 2 degree alcohol attacks on both sides goes to acid. 2 जो कार्बन है दोनों तरफ से अगर अटैक होगी तो वो कहां पे जाएगी? एसिड पे. अब दिस इज व्हाट डिग्री अल्कोहल? द 3 डिग्री अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल अटैक्ड ऑन वन साइड किस में जाएगा दोस्त? कीटोन. कीटोन्स में. ये हमारी गड़बड़ थी वीडियो. चल बिंदल आगे चलें. अब बिंदल एक चीज ले, यहाँ पे हमारी थी कीटोन्स की अगली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एसिड पे जाएगा.
बट अगर दोनों तरफ जुड़ा हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जाएगा। अभी यूज करने वाला हूं कीटोन्स गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन आएगा, ये याद रखना। दिस इज द डी ग्लूकोज। ये तो हमने शायद कर लिया, ये रेपिटेशन ही हमने कर नहीं लिया था, ये हमने कर लिया है ना, शायद ये एमिने के किसने मेरे साथ किया है। हाँ, अब डी फ्रक्टोज पे आ रहा हूं, द डी फ्रक्टोज। नाउ डी फ्रक्टोज, यू वॉच इट, द 1 डिग्री अल्कोहल कहां पे जाता है दोस्त? एल्डिहाइड। द कीटोन विल बी गोइंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बॉन्ड टूट जाना है ना, अल्कोहल की तो बात नहीं कही, कार्बन यस सर। डाइऑक्साइड। दिस इज अटैक्ड ऑन दोनों साइड, goes to acid, goes to acid, attacked on दोनों side goes to acid, and attacked on one side 1 degree alcohol goes to what? Aldehyde. These all are important. Previously asked questions की category में से इनको उठा के लाया हूं, not for your school. स्कूल में वो बात ही नहीं करेगा। The glucose and fructose oxidize to what product? HiO4 is going to give you this product. Shall we move ahead? Now it is going to be one more reaction. Pinacol, pinacolone rearrangement. Pinacol, pinacolone rearrangement. NICS CBSE के 2003 के सिलेबस में था, बट अभी के सिलेबस में ये नहीं है। चलिए एक बार देखते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार के सिमेट्रिकल कीटोन्स होंगे, आप उनको रिड्यूस करते हैं मैग्नीशियम अमालगम वाटर के साथ, these are going to form symmetrical diols, ज्वाइन कर गया, known as pinacol. Pinacol is going to be formed, right? This is what I'm talking about. Ketones on reduction with magnesium amalgam water form symmetrical diol called. अक्षिता कहाँ पे था अभी तक? तो पेपर ऐसा हुआ, स्कूल का पेपर। तो ये अरे पर्ल कहाँ पे है? पर्ल एक सेकंड गुड़िया, एक गलती कर गया अभी। Yes, अभी देख पर्ल, यहाँ पे पीएच लगाना था, तो पर्ल यहाँ पे पीएच आ गया। yes sir. जब मैग्नीशियम अमालगम वाटर डालेगा बहना क्या मिलेगा? ये अगर नाम में प्रॉब्लम हुई तो बेदी से पूछ लेना। 1,1,2,2 टेट्राफिनाइल इथेन डायोल, समझ आ गया ना? Yes जैसे sir. अभी खुश हो रही है, हंस रही है, तो बेदी हमें इसका नाम बताने वाली है। 1, 2, 3, 4। बेशक बेदी ऐसे चल जाता, 4 कार्बन एक ही तरीके से आने था ना डॉली तेरे पास, ऐसा जाता तो भी एक ही बात आता। चल पर चल, बेदी का माइक काम नहीं कर रहा, तो दोनों मिलके जवाब देना। इट इज 2,3 dimethyl Butanol. butane 2,3 diol. Diol. ब्यूटेन 2,3। तो इन मॉलिक्यूल्स को जनरल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पिनेकॉल। सो व्हाट आर पिनेकॉल सन? सिमेट्रिकल डायोल्स कॉल्ड पिनेकॉल। समझ गया बच्चा? चल भी पर्ल इधर आजा, मेरे साथ बात कर। पर्ल एक जीओसी के अंदर शायद पक्का तुम्हारे से मैंने पूछा हुआ है। पर्ल एक बात बता, एक Yes बिटिया sir. ये है, ठीक है? दिस इज
3 डिग्री। 3 degree. एक अभी इससे बनाऊंगा, समझ मिथाइल शिफ्ट करवा रहा हूं, तो इधर से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर दी, इधर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको A, इसको B, और ये आ गया CH। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, विच इज मोर स्टेबल? 2 degree वाला, क्योंकि मिथाइल शिफ्ट के बाद वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? आंसर ठीक आ गया बेटा। क्योंकि क्योंकि OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So Resonance. maybe this. B में क्या है? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जबकि ये कौन सा इफेक्ट से स्टेबलाइज है? प्लस साइन। इंडक्टिविटी। तो पर्ल दोबारा पूछ रहा हूँ, ठीक है जी? आइडिया इज पेज जब पलटूंगा तो यू शुड बी परफेक्ट। इससे पहले का मेरे को कोई मतलब नहीं था, है ना? तो पर्ल एक बात बता, ए और बी में से विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई? बी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन है वो शिफ्ट हो जाता है मिथाइल शिफ्ट की वजह से, और उसमें रेजोनेंस। ये नहीं बताना कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाना, इसकी कहानी बता। व्हाई? इसमें कौन सी कहानी से स्टेबलाइज है, इसमें कौन सी कहानी से स्टेबलाइज है? इसमें रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है, और उसमें प्लस आई की वजह से कम स्टेबल। गुड। अर्श कुछ बात करना चाह रही थी। अर्श, रेजोनेंस में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, समझ गया? Yes, so मैं भी मैं रेजोनेंस ही कह रही थी। हाँ मुझे पता है, सही कह रहे थे, मैं सिर्फ आपको वो पॉलिश कंसेप्ट दोबारा करवा रहा हूँ। इसमें मुझे पता है तुमने सही बोला था, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना, जबकि इंडक्शन में पार्शियल ट्रांसफर होती है। तो आज किस में पॉजिटिव चार्ज, ये वाला और ये पॉजिटिव चार्ज, किसका ज्यादा कम होगा? So B पे कम होगा। क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होती है, और इसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्शियली डिस्टॉर्ट होते हैं। डियर, आई सेड दिस थिंग बिकॉज ऑफ जस्ट एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। गुड अर्शी, अब मेरे साथ रहा बेटे। अब देख अर्श, इसको इन्होंने मतलब केमिस्ट ने इसको एक मजेदार चीज में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको प्रोटॉन दिखाऊंगा, जैसे आपने किसी स्ट्रे डॉग को डॉग फीड दिखा दी है, तो ये प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल में कहां जाने की कोशिश करेगा? तो OH के पास। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला। तो क्योंकि O के पास लोन पेयर है। तो OH2 बना दो। Yes sir. तो वही है, ऑक्सीजन किसी बदमाश से तुमने उसके लोन पेयर खींच लिए, तो वो तो गुस्से में है। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रिस्टोर करेगा। Yes sir. अब लड़ाई में किसी का फायदा होगा, किसी का नुकसान होगा, वाटर माइनस हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे दिखेगा? Yes sir. अब वही जो तुम्हारे से मैंने कॉन्सेप्ट बुलवाया था, कार्बोकेटाइन को प्रॉब्लम है, वो अगर अपने अगल बगल में देखता रहता है, जहां पे उसको स्टेबिलिटी दिखती है वो शिफ्टिंग मारता है, समझा? Yes sir. बस में नहीं है, बट जो 2003 यानी कि पुरानी सीबीएसई थी उसके सिलेबस में है। अब बना तेरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। एक सेकंड, अभी ठीक कर देता हूँ, क्योंकि मैं ना उसको आंखों को फ्रेंडली में सेट कर रहा था। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज? OH। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ सी कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कैसे सेटिस्फाई होता है। तुमने एक प्रोटॉन डाला था, एक प्रोटॉन जा रहा है बाहर, और जो अपने इलेक्ट्रॉन था वो इधर दे गया, और तुम्हें मिला
G गुड़िया, CH3, C double bond O, CH3. This is known as what? पिनेकॉल। इसको क्या बोलता था? पिनेकॉल। और इस रीअरेंजमेंट को बोलता है पिनेकॉल पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? एक बार दोबारा देखो। शर्मा जी, पर्ल, समझो। एसिड catalyzed rearrangement, symmetrical diols ग्लाइकॉल से ओन्स की तरफ चले जाते हैं with this reaction। ठीक है, चलो बेटे। नंदनी दीदी, नताशा, सहर, अरे भाभी, आज तो युवांश भैया भी बैठे हैं हमारे पास। आगे चले बच्चों। यस सर। गुड। ये चैप्टर अल्कोहल्स काफी बड़ा है। इसमें आपने अल्कोहल्स देखे, अभी आपसे ये पेंडिंग है ग्लिसरॉल्स। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ फिनोल्स। आई एम सॉरी, फिनोल से पहले हम एक इंपॉर्टेंट और फैमिली करने वाले हैं, ईथर्स, ग्लिसरॉल एंड द फिनोल्स। ये सीक्वेंस में आ रहे हैं। Now we are hitting the ethers. Ethers are considered to be dehydration product of alcohol. That is considered to be most stable family in the whole organic compounds after alkanes. तो ethers का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड में, तो ethers का नो राइट, तो यहां से ले आऊंगा, उससे मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। ईथर्स का तो जनरल फॉर्मूला होगा ROR, राइट। इनका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। सी, छोटा वाला is always going to be a substituent. You are going to call it methoxy ethane। मुझे लगता है मैंने पहले नोमेनक्लेचर में कवर किया है। This is CH3O, CH3, CH3। IUPAC नेम तो मैं बता देता हूँ। This is going to be 2-methoxypropane। मुझे इसका कॉमन नेम सुनना है। मिथॉक्सी आइसोप्रोपेन। थोड़ा सा सुधार, बिल्कुल ठीक कह रहा है। कोशिश कर बेटे। हाँ, विधि। ओके, मिथाइल आइसोप्रोपाइल। समझ गया? यस सर। गुड शेरखान। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो मुझे इसका वो नाम बता। पहले करा चुका हूँ विलियमसन सिंथेसिस में। MPBE। कोशिश करना। जो बोलेगा मैं वही ड्रॉ पहले करूँ। टर्शरी ब्यूटाइल बना के उसके बाद। अरे मुझे आता होता तो मैं तेरे से पूछता, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, मेरे को यही तो बता। 3 कार्बन की चेन और फिर बीच वाले कार्बन पे CH3 डाल के। हाँ, और फिर यहाँ ये फिर सेकंड
ठीक जा रहा है? OCH3 डालना है। बस आपको जो मन में आ रहा था मेरे से वो बात करनी थी, है ना? ये मेरे को पक्का है वेदी तेरे को आता है, फिनेटोल वाला। यस, बेंजीन और उसके ऊपर OC2H5। शाबाश बेटा। तो मतलब ईथर का नॉमेनक्लेचर हम काफी देर से कर चुके हैं, है ना? तो ऑब्वियसली पहला टॉपिक क्या आ रहा है? द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कोहल्स, अगर आप 413 केल्विन पे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या मिलता था? एसिड, ईथर। यस, मैकेनिज्म हैज बीन डिस्कस्ड वेयर, कि नहीं हुआ? यस सर, पिछली क्लास में किया था। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। अच्छा बेदी तक थी नहीं। Sanya, good. Vedi, some alkenes are also going to be formed because sulfuric acid है, dehydration product तो आएगा ही आएगा. Remember, Sharma ji, large excess of alcohol is to be used, otherwise alkene will be formed. तो दरअसल शर्मा जी होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखना वीडियो, एक सेकेंड, तो शर्मा जी देख दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन लार्ज एक्सेस, ठीक, एक ऑप्शन लिमिटेड. तो लिमिटेड में क्या होने वाला है? द डिहाइड्रेशन मॉलिक्यूल के बीच में से ही हो जाएगी. ये मैंने OH गलत जगह से निकाल दिया, एक मिनट बेटा अभी ठीक कर देता हूँ. तो OH मैंने गलत जगह से निकाल दिया. जस्ट अ मिनट, इट हैज गॉन फॉर सेविंग. तो ये जाके जर्मनी में सेव होगी. ठीक है, सेविंग ही कहां से होगी? तो इधर से शर्मा जी वाटर निकलेगा. यस क्या सर। मिलेगा? इथीन. और अगर ये OH यहां से निकलेगा तो क्या मिलेगा? डाइइथाइल ईथर। तो अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज करेगा क्या मिलेगा? ईथर. अगर लिमिटेड अल्कोहल यूज करेगा तो क्या मिलेगा? अल्कीन. डू यू अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट? यस सर। अवॉइड यूजिंग 3 डिग्री अल्कोहल, अदरवाइज अल्कीन्स विल बी फॉर्म्ड. वो तो है ही. द रिएक्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो क्या देंगे गुड़े? अल्कीन्स ही देंगे. Avoid mixture of alcohols because the खिचड़ी product is going to be obtained. तो वो तो हम हमेशा ही avoid ही करने वाले हैं. For example, watch this. अगर 1 डिग्री है, सल्फ्यूरिक एसिड डालेगा 413 केल्विन पे, क्या मिलेगा? ईथर. अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री तुम उम्मीद करते थे आपको ईथर मिलेगा. ठीक है, मिलता है, बट वो माइनर हो जाता है. मेजर क्या चल जाता है? द एल्कीन. और अगर 3 डिग्री अल्कोहल के ऊपर आपने एसिड डाला तो आपका ओनली मेजर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सन, कौन से वाला? द alkene is going to be obtained. Don't try to use this reaction with secondary or tertiary alcohols. The dehydration of alcohols should be used only on 1 degree alcohols. Where did you discuss Williamson synthesis, sir? RX plus Rona, dry ether, ROR dash, and the NaX is going to be obtained. We have already discussed under the nucleophilic substitution reactions of alkali. You were taught do not use 3 degree alkali. याद है कि भूल गया? गुड. तो ऐसा कर, मुझे एक प्रोडक्ट बता. ये बनाना है शर्मा जी हमने. CH3 CH3 CH3. तो मुझे
राइट कॉम्बिनेशन अल्काइल हैलाइड का और एल्कोक्साइड का बताओ। अश, स्विया, एमी, प्लीज सब बताएं। हाँ वेदी, हिंट देना। अवॉइड 3 डिग्री एल्काइल। क्यों भाई? बिकॉज क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। सो यू शुड, ये H गिरा, CH3 ONA क्या लगाएगा? CH3। NOCH3 ठीक है जी, ठीक कह रहा है ना? 1 डिग्री एल्काइल। अब हमें बताइए, अगर मैं ये यूज करता, ये बात तो पक्का है मुझे कि आपको समझ आ गया है, इसकी यील्ड पुअर होगी, है ना? तो क्या मिलेगा बेटा इससे, ये पूछ रहा हूं तेरे से। सर आपने क्या लिखा है बोर्ड पे? कुछ लिखा है अभी? फिर ऐसा, इसका मतलब आपके पास अभी थोड़ा नेट वीक है। यस सर, दिख नहीं रहा कुछ। A+B। अच्छा, सिर्फ वही आ रहा है आपको, फिर लोड हो रहा है। कोई बात नहीं, आने बेदी से बात कर लेते हैं। हाँ बेदी मैम, व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड? CH3C और CH3 सेकेंड वाले C पे डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल सही बोला बेटे। और NaCl। समझ गया? बिकॉज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से क्या मिल जाना था? द एल्कीन। गुड है, रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अब देखते हैं आज को एक रिएक्शन। अंशुमन जी बात करेंगे आप प्लीज? हाँ, आज आप तो बात करने ही वाले हो। बेदी तुम भी अनम्यूटेड रहो। तो बेदी, मैं इससे ये बना गुड ऑप्शन और नॉट गुड ऑप्शन? नॉट गुड। नॉट गुड, बिल्कुल सही। बिकॉज these are poor substrate for acid। तो इसके लिए पर्ल हमें एडवाइस करने लगी है, पर्ल क्या कर ले इसको? ONL। CH3Cl। गुड 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 गुड। अब एक बात बताओ, ऐसा क्या करूं कि ये क्लोरो इसमें कन्वर्ट हो जाए? यस, यू नो, इवन इफ यू डू नॉट टेल मी, तो जो कोशिश करेंगे वो फायदे में रहेंगे। सर हाँ, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकता है शेर खान। तो NO2। और शर्मा जी आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा इसको उड़ाना कैसे है। ठीक, अभी आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, कि NO2 को मैं रिड्यूस कर दूंगा, NH2 बन जाएगा। इसको मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे ले जाऊंगा। फिर उसके ऊपर ना एक चीज सिखाऊंगा समय आने पे, H3PO2 डालूंगा या इथेनॉल डालूंगा, ये NO2 ग्रुप हो जाएगा। ये सिर्फ आपको वैसे ही बताया वीडियो, राइट? शर्मा जी, अब 6 पेज दिख रहा है, वो बीच में आपकी बैंडविड्थ कम हुई थी। यस शर्मा सर, जी, अब ठीक। हाँ, परसों आपका सेकंड टेस्ट आ रहा है हैलोजन। ओके, यस सर। सेकंड टेस्ट मैंने 4 टेस्ट प्लान किए हैं, तो एक परसों आ जाएगा, एक मंगलवार को थर्ड आ जाएगा। तो फिर 2-4 दिन छोड़ के, ताकि आप अपनी गलतियां सुधार लेंगे, तो फोर्थ आएगा। तो कंटिन्यूटी में इसलिए ले रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए, तब तक हमारा अल्कोहल तैयार हो जाएगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। अल्कोहल फिनोट पर ये बड़ा चैप्टर है बेटे, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मतलब थोड़ी देर गैप आएगा आपके टेस्टिंग में। तो have we discussed this reaction already?
Can I leave it? Yes, sir. We did it. Not a big reaction. ये रिएक्शन शायद मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, अभी कर देता हूं। ये जो CH2N2 है ना, इसको जब भी हीट करते हो बेटे, आपको कार्बीन मिलता है। कार्बीन को बड़ी मजेदार बीमारी है। ये जैसे आपने कोई पेट पाला हुआ है घर पे, तो वो आप बैठे हैं, आपका भाई बैठा है या माँ बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, वो आपके बीच में घुसने की कोशिश करता है, just to seek attraction, just to seek affection, right? So ये जो डाइएजो ग्रुप है ना, देख कैसे मजेदार चीज के बीच में घुसता है। डू यू अंडरस्टैंड मलिक? वही चीज लिखा है। Yes, sir. ये CH2 इसके बीच में घुस जाता है। क्या Okay, मिला? sir. ROCH3। बट याद रखना, ये सिर्फ आपको मिथाइल ईथर्स बनाने का ढंग देता है। अब बेशक वो हमने कर लिया। अब जो अगला रिएक्शन लिख रहा हूं वो ईथर के साथ रिलेटेड तो नहीं है, बट डाईएजोमीथेन के साथ रिलेटेड है। क्या आपको वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन नजर आना शुरू हो गया? Yes, sir. अब तुमने मेरे साथ बात की है तो उसका रिवार्ड मिल रहा है तुम्हें। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं किटीन। क्या बोलते हैं? Ketene. किट। इसको क्या बोलते हैं गुड़िया? CH2N2। नहीं आता। नहीं आता। एजो को बोलते हैं नाइट्रोजन। डाईएजो समझ आ गया? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? डाईएजो मीथेन। सी Okay, sir. तो क्या फर्क पड़ता है? बस आप बताएंगे तो हमें फायदा होता है। तो कल को हर्ष एक अच्छी जगह पे पहचान बनाती है तो आई कैन जस्ट बोस्ट, है ना? और तेरे को ये तो आशीरिक, इसका फायदा क्या होता है गुड़िया? जब इसको हीट करता है ना, इससे क्या मिलता है तेरे को? Carbene. वेरी गुड। सो बेसिकली these two are method of generation of carbenes. Repetition is the only thing you can win. Ketene। निचले वाले का नाम मैं भूल गया। Diazomethane. ये इनकी क्या खासियत है? ये कार्बीन पैदा करते हैं। कार्बीन एक इलेक्ट्रॉन उसका ले लेता है, उसका लेता है, बीच में जाके घुस जाता है। कार्बीन की खासियत है। तो अगर ये करेगा, अभी भी तो कार्बीन ही मिलेगा ना? Yes, sir. क्या होने वाला? जैसा हमने OCH. यप यू राइट, ये मिल जाएगा, है ना? Yes, sir. जस्ट फॉर योर हाई फ्रेंडलीनेस। अदरवाइज आप इसको मिथाइल क्या लिखते हैं? इसको Ester. मिथाइल एनोएट मिलता। अब एक ये एक चीज था, ये जो हमने किया, ये भी एक चीज था। अब एक चीज देख, आपको अभी मना किया गया कि अगर इससे ईथर बनाना, ये करेक्ट याद कर, कहीं पे तुझे आपसे ही बात हुई थी। 3 डिग्री हाइड्रोजन is oxidized by KMnO4। क्या बनाता था आज? डिग्री को बेटी तेरे को याद आया? अब इससे बना दे हीट। Yes, sir. You will be getting methyl tertiary butyl ether। गुड है। तो
who remember the oxymercuration demercuration reaction? Who remember oxymercuration demercuration reaction? Yes. Anyone? Sharma ji, do you remember alkene? The alkene. पहले में Yes, करते sir. थे मर्क्यूरिक एसिटेट, ये बन जाता था। तेरे को बताया था साइक्लिक कार्बोकेटायन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो रीअरेंज कर जाए, बट इतनी होती है कि वो आपको मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो करे। अरे अल्कीन से अल्कोहल बनाने के माता तेरे को 3 तो रास्ते कराए थे, एक एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, उसमें मार्कोनिक ऑफ और रीअरेंजमेंट हो सकता था, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें मार्कोनिक ऑफ बट नो रीअरेंजमेंट वाज पॉसिबल। तो जब इसके ऊपर वाटर डाला तो देखो ये मिल जाता था। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम अगर आप इसको यूज करते थे तो आपको क्या मिल जाता था? अल्कोहल मिल जाता था। जस्ट नोटिस द डिफरेंस, यहाँ पे वॉट, यहाँ पे अल्कोहल डाल दो, राइट? तो यहाँ पे ओ आर मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिला था? ओ एच मिल जाएगा, rest everything remains same, you will get what? Ethers. So you can simply add Markovnikov rule के मुताबिक, देख शर्मा ये है, ठीक? आप इसके Yes. ऊपर अगर हाइड्रेशन करते हैं तो बहन ए और बी में OH कहाँ जाएगा? A पर। बिल्कुल सही, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक? मैंने रीअरेंजमेंट का स्कोप भी नहीं दिया था आपको, ठीक है जी? अब इसके बाद अगर आप इसके ऊपर मर्क्यूरिक एसिटेट, याद आ गया? Yes. तो गुड़िया कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तो वही मिलेगा। वही मिलेगा। और मर्क्यूरिक एसिड के साथ क्या डाला था? वाटर, ठीक है? अब ध्यान देना, इसमें सिर्फ फर्क महसूस करना। चलो कॉन्ट्रास्ट बना रहा हूं। हाँ बेटिया, मीथेनॉल, जी डियर, क्या करूं? सर अभी रो हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो we will get what? OCH3 दमन उसकी जगह पे हमें मिल जाएगा। हिमांशु, बिंदल समझ आ गया? इज इट क्लियर? सहर आगे जा सकता हूँ? सनी, इज इट क्लियर? नेहमत, राणा, ठीक है ये? सो दैट इज बेटा, अगेन दिस रिएक्शन इज नॉट इन योर स्कूल सिलेबस, बट वैसे आप तो सारे लेके चला करो, जब हम एनसीईआरटी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें ये आसानी से सारे के सारे कवर हो जाते हैं। The chemical properties of ethers. By definition, the ethers are considered to be most unreactive family of in organic compounds
आफ्टर एल्केन्स। ये इतनी अनरिएक्टिव है कि आप इसको इसकी वजह से नंदिनी रतन आप इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, अनरिएक्टिव, देयरफॉर दे आर मोस्टली यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। तो इनके बारे में ये खास बात आपको भूलने की नहीं है, ये ईथर की स्टोरी है। So they are said to be basically almost inert, almost inert. तो काफी कारणों से इनकी जो आप compatibility बिठाते हैं, comparison करते हैं, वो alkanes के साथ होती है, just because of beta party less reactive. And दमन, इनमें से भी ना बेटे तेरे को जो सबसे ज्यादा दिखेगा, that is going to be diethyl ether, और बाय डिफॉल्ट इसको ईथर बोलते हैं, ईथर, ईथर। और इनके बारे में वर्ड ऑफ कॉशन, दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। इतने इनफ्लेमेबल हैं कि जब हम लेबोरेटरी में इनको यूज करते हैं तो हम लेबोरेटरी में सारे के सारे डायरेक्ट सोर्स ऑफ फायर बंद कर देते हैं। डायरेक्ट का मतलब जैसे बंसन बर्नर पे अब हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हम उसको इलेक्ट्रिकल हीटिंग से कर लेते हैं, हमारे पास हीटिंग मेटल्स होते हैं तो हम उसको ऑन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेके जा सकते हैं, बट आग नहीं हो सकता है। ये पेट्रोल से भी ज्यादा या बराबर ही कह लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी इनफ्लेमेबल। पर्सन बच नहीं सकता है, देयर इज नो रेस्क्यू अगर पेट्रोल से या उसके ऊपर ये अगर गिर पड़े, तो देयर इज नो रेस्क्यू एट ऑल, रिमेंबर। सो since they are going to be having lots of comparison with the alkanes, you understand why? So उनको हम सबसे पहले आपको distinction करवाते हैं with cold mineral acid from the alkanes। वापस आता हूं, डोंट वरी, वहीं पे ही आऊंगा। So देखिए, क्या आप यहाँ पे एक लॉन पेयर नजर आ रहा है तो दो हैं, बट अगर डोनेट करेगा तो एक ही करेगा, दो कर सकता है। दिस इज गोइंग टू बी द केस। हम इसके ऊपर कोल्ड मिनरल एसिड लाइक H2SO4, HNO3, HCl डालते हैं। व्हाट हैपेंस इज सन C2H5, आराम से देखो, O यहाँ पे H मिल जाता है और आपको मिलता है C2H5, और इसके बाहर HSO4 नेगेटिव मिल जाता है। These are ionic compounds, so you can call it diethyl oxonium hydrogen sulfate. These are salts, मतलब precipitate कर। और अगर आप इसकी जगह पे let it be HCl डालेंगे, ठंडा हॉट करेंगे तो अभी रिएक्शन आएगा। So this is going to form, see, बनाने का ढंग चेंज करता हूं, आप समझिए। सेम है ऊपर वाला और ये सेम, समझे हो कार्तिक? इसका नाम क्या होगा? डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। बिल्कुल सही। So this is going to be somewhat salt. Do you understand? So ethers and alkanes can be distinguished by cold mineral acid. Ethers form oxonium salt with cold mineral acid, while alkanes do not react with cold mineral acid. This reaction is used as a test for the ethers, distinction between ethers and alkane. आप समझ पा रहे हैं कि alkane और ethers को हम क्यों
कंपेयर कर रहे हैं। बेटा लॉन पेयर के बारे में जानता है, डेटिव बॉन्ड के बारे में जानता है? Yep. Do you remember dative bond? Do you remember Lewis acid? Yes, sir. बताइए what are Lewis acids? Which Sir, have, which lack, बिल्कुल सही बोल रहे हो, which have empty orbital or which are going to be electron deficient. Lewis base electron rich. electron rich. एग्जाम्पल याद कर, ये वाटर है, ये BeF2 है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। Yes, sir. ऐसा हो जाएगा बेटे। सो दिस इज गोइंग टू बी बेस, दिस इज गोइंग टू बी Lewis acid। कोई दिक्कत? नॉट No, अ sir. बिग। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आप समझ पाए, रिएक्शन विद Lewis acid, reaction with Lewis acid. So this is a lone pair, this is a BF3. So what is going to happen? This lone pair will be donated, will be going towards BF3. This is going to be known as boron trifluoride etherate. ईथर के कॉम्प्लेक्सेस को स्पेशल नाम दिया गया है ईथरेट, ईथर-8. How many of you remember Grignard reagent? Grignard reagent. RMGX. Good sir. सलमान सिंह आज एब्सेंट है। RMGX, ये देख ईथर समझ गया। So this is going to be forming a dative bond. So इसको क्या बोलेगा? Grignard reagent Etherate. Grignard reagent etherate. So that is why Grignard reagent is prepared in dry ether. Dry ether. कौन-कौन से टेस्ट रिएक्शन कर चुके हो अभी आप ईथर से? बोलिए। Distinction between alkanes and ethers. दूसरा जीसन, reaction of ethers as Lewis base. Reaction मैं लेके जा रहा हूं, that is reaction of, इधर क्या किया था? Cold mineral acid. Reaction with hot सर mineral. वो थोड़ा लैग आ रहा है। कोई बात नहीं, म्यूट कर दीजिए। चलते इतनी देर स्विया से बात करते हैं। हाँ स्विया। यस सर। स्विया, रेदर अगर ऐसा कहूं ईथर का यही रिएक्शन पूछा जाता है जो तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, तो बुरा नहीं होगा बेटा। हाँ चल जरा आराम से इसको बहना डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस। चल रिएक्शन विद हॉट मिनरल एसिड, आराम से समझ, खूब सारे क्वेश्चन पूछ, फायदा होगा। देख गुड़िया, लॉन पेयर नजर आ गया? यस सर। H+ नजर आ गया? अब की बार पहली बार में क्या मिलेगा? ये कोई प्रॉब्लम गुड़िया? पीछे भी बनाया था कोल्ड के साथ। कोल्ड में ना यहाँ पे हमने रिएक्शन रोक दिया था, अब हम रिएक्शन को
आगे लेके जा रहे हैं, ये हमने पहले नहीं किया था। अब हेलाइड आयन का अटैक होगा, SN2 की तरफ ले जा रहा हूं। The halide ion, SN2 was one step process. Yes, sir. The halide ion will always attack on smaller alkyl group. तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा सुया? छोटे वाले के ऊपर, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर कम है और ये इलेक्ट्रॉन Yes. इसको चल जाएगा। तो आपको क्या मिला? प्लस CH3Cl. Did you understand? Yes, HCl sir. ही। Yes, sir. चलो एक बार और करते हैं, ठीक? तो अगर क्वेश्चन पूछता रहेगा बेटा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा सच में। तो पूछना, अब की बार PHOCH3 ले आते हैं। अब की बार सॉरी HI डालते हैं, राइट? तो क्या मिलेगा? गॉट इट? अब याद कर, ये वाला जो बॉन्ड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, Yes, sir. तो ये मजबूत, ये स्ट्रॉन्ग। इसको बोल रहा हूं A और इसको बोल रहा हूं B. A and B, which will break? मिथाइल के साथ वाला कि फिनाइल के साथ वाला? B. वेरी गुड। तो अब आयोडाइड आयन जब अटैक करेगा, मैकेनिज्म कौन सा है ना? SN2. तो साथ में क्या मिलेगा? CH3. समझा? Yes, sir. I'm telling you this is going to be most commonly asked question, rather this is the question जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओए रतन, क्या चल रहा है? तो ये देख रतन, मुझे भूल गया, मदद करेगा? हाँ जी, पक्का? हाँ जी। CH3 लगा देता हूँ, हालांकि अभी किया था बट फिर भी। बहना क्या मिलेगा? मैकेनिज्म छोड़, ऑक्सीनियम आयन। बिल्कुल बिल्कुल मैकेनिज्म छोड़, सीधा प्रोडक्ट बता। CH3I बाहर आ जाएगा क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है। हिंदी के नंबर मत देना, है ना? छोटे ग्रुप के साथ साथ लगेगा क्या जाएगा? आयोडाइड जाएगा। I नेगेटिव। बिल्कुल। चुप हो गए तो कैसा बैठा है? कोई और तेरी रिकॉर्डिंग कर रहा था ना? नहीं, अच्छा, वरना नंदनी बात ना करे होता ही नहीं है। नहीं सर। अच्छा, अगर एक्सेस में डालेगा गुड़िया तो क्या होगा? देख, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ जी, HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी सर। तो क्या बना देगा बहन? यस सर, वो OH का बॉन्ड भी ब्रेक कर देगा। दोनों क्या बन जाएंगे? आयोडो बन जाएंगे। डाइड। ये समझा? यस सर। क्या लिखा है? The reaction with hot halogen acids। Yes, आपने ये ऑक्सीनियम आयन बनाया फिर उसका हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया। अच्छा, ये मैं सॉरी, मैं ना आगे से एक चीज ले आया। ये मैं आगे से एक चीज ले आया। अरे ये क्या लिखा? ये if excess of HI is used, जो भी हम पीछे करके हटे हैं, जिसमें आयोडोइथेन और वो मीथेन बन गया था। थोड़ी सी जुगत लगा। जुगत लगाने का मतलब समझते ना? अच्छा, हमने 2 मोल्स लिए तो दोनों बॉन्ड टूट गए। जो OH के दोनों बॉन्ड टूट गए तो दोनों पोजीशंस पे II जुड़ गए क्योंकि HI एक रिड्यूसिंग बिल्कुल एजेंट है।
ख्याति कोशिश कर रहा हूं आपसे बात करने की। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। ये वाला बॉन्ड क्या था? मजबूत था। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म। नहीं, ये दोनों कितने होते ख्याति क्या मिलेगा यहाँ पे? हाँ गुड़िया, this is going to be the C2H5. Do you understand? ठीक है। एमी, ये क्या करने वाला हूं? अब जरा देख, एक सेकेंड बुढ़िया, कुछ ऊपर लेके आ रहा हूं। एमी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एमी, अभी तक मैकेनिज्म कौन सा था? SN2। अब देख बेटे, कुछ फर्क आएगा। अगर एल्काइल is 3 degree, if one side वाला alkyl is 3 degree or allyl or benzyl, then the reaction mechanism becomes what, son? SN1। तो इसका होगा क्या? जब तुम इसके ऊपर डालोगे ये HI, तो जैसा अभी आप बना रहे थे ये मिलेगा। यस सर। अब की बार SN1 में 2 स्टेप हो जाता था। यस तुम्हें याद सर। है? कार्बोकेटायन मिला करता था। दिस विल बी फॉर्म गुड़िया, और साथ में क्या मिल जाएगा? CH3OH। CH3OH। इसके ऊपर आयोडीन के अटैक से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दिस इज टू बी ऑब्टेन्ड। एक बार दोबारा, ठीक? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे समरी बना के बताओ। आर यू एबल टू सी? ये वाला बॉन्ड टूटना है ना, इधर और इधर वाला कोई भी। क्या आप Yes, इसको sir. देख पा रहे हो? हाँ, वी आर एबल टू सी द 3 डिग्री। Yes, sir. प्लस आया तो यहाँ पे डले, तेरे पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। Positive charge। अब मैकेनिज्म विल बिकम SN1। 1। The mechanism will become SN1। देखो याद है, SN1 was 2 2-step process। इसमें कार्बोकेटायन बनता था। अब कार्बोकेटायन क्यों बना? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन ले गया? ऑक्सीजन, मिथेनॉल बाहर। Oxygen। और आपको क्या मिला बेटिया? द टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। The tertiary butyl iodide is Iodide। to be obtained। एक सेकेंड, मेरी स्क्रीन में लेके आया था। चल भाई, थोड़ा रेस्ट कर सकता है डॉली? ये पर्ल से बात करते हैं, काफी देर हो गई पर्ल से बात नहीं हुई। पर यस सर। बेंजाइल कार्बोकेटायन नजर आ गया तेरे को? हाँ जी सर। मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN। हाँ, रेपिटेशन कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही। ये बनेगा गुड़िया। यस सर। क्या मिलेगा बाहर? C2H5। स्टेबल। इसके ऊपर ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा, क्या मिलेगा? The benzyl bromide is going to be obtained। Do you understand what I want to tell you? समझा? यस सर। अभी तक कौन कौन से रिएक्शन किए हैं ईथर के? बोलो पल। SN2 और SN1। ना, पहला स्क्रीन के नजर नहीं आ रहा क्या? 82 नंबर स्क्रीन। नो सर, 81 दिख रही है। वो अभी लोड हो रही होगी। हो रही है।
हो गई है? पर ला गई स्क्रीन 82? Yes, sir. पर अभी तक कौन कौन से रिएक्शन किए गुड़िया ईथर के? Distinction between alkanes and ethers. थोड़ा बता अल्केन और ईथर के बारे में। पहले रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिए आप। नंदनी ले लो बीच में। यस नंदनी, क्या मिलता था? एल्केन मिलता था सर। ओए जब कहाँ हम से? उसको जब भी हमको ईथर का कोल्ड एसिड के साथ रिएक्ट कराते थे तो हमें लगता था कि वो ईथर ही फॉर्म करेगा, पर वो असली में ईथर नहीं होते, वो एल्केन नहीं होते, वो ईथर्स होते हैं। कैसी बात कर रहा है? कोई कंफ्यूजन है? तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, दो बोतलें हैं, उसमें एक में एल्केन है और एक में ईथर। तुम क्या करोगे? दोनों में से एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लोगे। अब दोनों के ऊपर कोल्ड मिनरल एसिड डालोगे। जिस केस में सॉल्ट यानी कि प्रेसिपिटेशन हो गई वो कौन सा था? ईथर। और दूसरा क्या था? ईथर। एल्केन। वो तो हमने एल्केन। आपको वैसे बताया ना बच्चे। आप हमें बताइए ओके कि सर। this reaction is going to convert ether into diethyl oxonium salts। ओके सर। ठीक है जी, वो एक अलग ओके चीज है। एल्केन और ईथर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कोल्ड मिनरल एसिड। ओके सर। सेकंड वाला रिएक्शन बता। फिर हमने रिएक्शन ऑफ ईथर्स एज अ लेविस बेस करा था। ये क्या बोला? लेविस बेस, लुईस बेस? लुईस बेस। लुईस बेस। लुईस बेस से क्या मिलते हैं? इथरेट। इथरेट, क्योंकि इनके पास लॉन पेयर है। पेयर होते हैं। तीसरा रिएक्शन क्या किया? हॉट मिनरल एसिड, जिसमें हमने HI का रिएक्शन कराया था, जिसमें हमें ऑक्सोनियम आयन मिला था। SN2 रिएक्शन थी वो। हॉट मिनरल एसिड में सिर्फ फर्क क्या हुआ? ऑक्सोनियम सॉल्ट्स तो मिले। ऑक्सोनियम आयन अब साथ में हेलाइड फ्लोराइड। को तोड़ दिया। यस सर। नॉर्मली हेलाइड आयन किसके ऊपर जाएगा? CH3 पर। छोटे वाले के ऊपर, हाँ जी। बिकॉज ऑफ स्टीरिक फैक्टर। फैक्टर। अगर HI यूज करेगा तो कहाँ जाएगा? इथेन पे, इस रिएक्शन में। इथेन कहाँ दिख रहा है बहना तेरे को? CH2H5OH पर जाएगा सर। तो ये इथेन थोड़ा है। इथेनॉल विल बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल है। एल्काइल। यस सर। अरे एक बात बता, तूने नाश्ता किया था? दोपहर का खाना खाया? हाँ जी सर। कितने बजे खाया था? अभी क्लास के दौरान? हाँ जी बिल्कुल। तो जब भी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की क्लास शुरू हुआ करे ना, सच में एज अ टीचर कह रहा हूँ तेरे को, है ना, नथिंग टू, मतलब कोई माँ के जैसे नहीं बोल रहा हूँ, भर के कोई कॉफी, चीनी, परोठा, कोई ऐसी चीज खा लिया कर। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज की कमी होगी, थॉट प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है। इथेन कहाँ बनाया, एल्केन कहाँ बनाया बेटा, तू गड़बड़ कर रहा है। तो दिस इज THF है। अगर इसके ऊपर HI एक्सेस में डालेगा, दोनों बॉन्ड खुल गए। अगर एक मोल HI डालेगा तो क्या मिलेगा? यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या मिलेगा? आयोडीन। राइट? ये वाला बॉन्ड Yes. कभी नहीं टूटेगा। क्यों? कौन क्यों? सा strong सर? है। स्लाइड कौन सी है? 77 स्लाइड मेरे शो नहीं हो रही है। कौन सी आ रही है? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वो आयोडीन वाली आ रही है अभी भी। कोई नेट की वीकेज है, कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूँ, एक मिनट, मैं अपना कैमरा भी टर्न ऑफ कर देता हूँ, शायद अब तुम्हारी तरफ वो डाटा रिले कम हो जाएगा। पर हाँ, ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना पर? स्ट्रॉन्ग है। यस पर सर। 78 आ गई है। यस सर। तो अगेन ये वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। बट अगर R 3 डिग्री अल्काइल, एलाइल और बेंजाइल हुआ तो मैकेनिज्म क्या बन जाएगा? SN1। एक्सक्यूज तो मी सर। बेसिकली बड़ा था, एक मिनट आने, तो इसके साथ
आयोडो ग्रुप लगने वाला है। हाँ अनया बोलो। अभी वो जो 79th आई थिंक स्लाइड थी उसमें ये पर SN1 मैकेनिज्म हुआ कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनता है ना, तो Yes, जो sir. भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रही है तो वो SN1 के रास्ते से चल जाएगा। फिर पहले वाला SN2 क्यों था फिर? क्योंकि वो नॉर्मली जाता ही उस रास्ते से है। ओके ठीक है जी, वो हमने ऑब्जर्व किया है कि मैकेनिज्म इस प्रकार से उसका जो इंटरमीडिएट होता है वो एकदम ये बनाता है प्रोडक्ट। तो अगर SN वो था 2 था तो उसकी कंडीशंस SN2 की हैं। अदरवाइज ये अगर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तो किस रास्ते से चल जाएगा? SN2 से चल जाएगा, SN1 से। SN1 से जाएगा। Yes, SN1 से। अब आप मुझे बताइए, मैं भूल गया जैसे बात करते करते ना, अगर मैं HBr यूज करूं, हीट करूं, प्रोडक्ट क्या आएंगे? मुझे तुम्हारे से ना IUPAC नेम या कॉमन नेम सुनने में बड़ा मजा। बेंजाइल नहीं नहीं नहीं, फिनॉल नहीं, एक सेकेंड। मैंने ठीक बोला था। फिनॉल बनेगा। खाना कब खाया था? 130 पर फिनॉल ही तो बनेगा क्योंकि वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजर, दूसरा वाला वो CH2 और O के बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। फिनोल के साथ ब्रोमीन चला जाएगा। ये जो पहले बोल रहा था ना ये ठीक बोल रहा था, इसने मुझे पूरा बताना था। तो इसने बोला था बेंजाइल, बट ये बीच में बस खा गया। तुमने पहले कोशिश की थी, वो बीच में मुझे दोनों प्रोडक्ट सुन रहे थे इस करके बोल रहा था। देखो क्या क्या मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड एंड फिनोल इज गोइंग टू बी। फिनॉल यहां से आगे अभी नहीं जाएंगे, राइट? सो वी विल स्टॉप हियर. Next class we will be able to finish the ethers. Ethers ज्यादा नहीं बचा है. Once we will be able to finish ether, उसके थोड़े से रिएक्शन कराने हैं, फिर हम आपको लेके जाएंगे phenols. That will be the major family. Phenols के बाद आएगा polyhydric alcohol, glycerin, glycol. So I expect तकरीबन 3 से 4 क्लासेस मुझे इसको भी खत्म करने में लगेगा. इट्स अ बिग चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, काफी बड़ा चैप्टर होगा. Then we will be moving ahead. But right now you have to remember that tomorrow, I'm sorry, आज Thursday है ना, so tomorrow you are going to have a test for alkyl halide 2 और Tuesday को alkyl halide 3 आ रहा है. अगर आप बोलेंगे तो वैसे मैं अपने आप प्लान कर लूंगा, हो सकता है कि मैं बीच में कोई छोटा एक चैप्टर डाल दूंगा तो उससे आपको ऑर्गेनिक का जरा बैकअप रिवीजन करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी. वी कैन ऐड सरफेस केमिस्ट्री और कोई हल्का चैप्टर डाल सकते हैं, मतलब इसके और उसके बीच में. हाँ बोलो सर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो? सैटरडे को गुड़िया, ओके सर. सैटरडे को तो क्लास रखेंगे बट टेस्ट भी रखेंगे बेटे, ठीक है? और हाईएस्ट मार्क्स किसके थे? 165 किसके थे? शर्मा के? चलो हाँ. सना कितने आए थे तुम्हारे? 98. 165 किसके थे? तो 160 का था पेपर, तो 155 थे हाईएस्ट. ओके मैं खुलवा के 156 थे सर. ठीक है 156 क्योंकि किसके थे? क्वेश्चन तो रॉन्ग था. तो हाँ कोई ना, मैं रिकॉर्ड खुलवा के देखता हूँ, मैं देखता हूँ.
चल गुड़िया, परसों इससे आगे हम चलने वाले हैं, ठीक है? गुड लक सर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू अगेन। ठीक है जी, Thank you, sir. बाय गुड़िया, Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय Thank बेटे, you, sir. गुड लक, साइनिंग ऑफ बच्चों, बाय बाय।